Okay, let us start the lecture again. Let's first define the measurable cover. Okay, definition. Let X as mu be a major space. Be a major space, and A is a subset of X. Then any measurable set, कोई भी measurable set जो आपके पास होगा, any measurable set E such that A subset of E and mu star of A 1 net. Mu star of A is equal to mu star of E is said to be a measurable cover of is said to be a measurable cover of A. So from the above theorem we conclude that every subset of A has a measurable cover. From the above theorem we conclude that every subset of X has a measurable cover. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये बताएंगे आपको जो सिंगलटन सेट्स होते हैं वो भी नॉन मेजरेबल सेट्स हो सकते हैं. जो लेक्चर के स्टार्ट में किसी ने बताया था कि हम सिंगलटन सेट मेजरेबल लेंगे, तो ओबियसली लिबेक मेजर में है सिंगलटन सेट्स मेजरेबल बिकॉज द लिबेक मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0, दैट्स अ नल सेट, बट इन जनरल इट्स नॉट ट्रू. And our example is just let's take this X consisting of 3 points, and let's define S. This S is equal to it contains the empty set phi, it contains the singleton 3, doubleton 1, 2, and the whole space X. Then one can easily verify that then S is sigma algebra. You can easily verify then this S, because it's closed under intersection and under union, and it's also closed under complementation. Then S, okay, yes, then S is a sigma algebra. It's a sigma algebra. So now let's define set function on S. Define mu from S to 0 to infinity by. देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत आसान है कंस्ट्रक्ट करना. ऐसे एग्जाम्पल होता है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स, इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, बट द रियल एग्जाम्पल दैट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको रियल लाइन पर कोई सेट दिखाना कि जो कि मेजरेबल ना हो, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो मेजरेबल ना हो, जो मेजरेबिलिटी की प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. और वो हम नेक्स्ट करेंगे. और वो जो एग्जांपल की है वो विटाली ने की है. उस एग्जांपल ये बहुत आसान है. आप यू कैन कंस्ट्रक्ट n नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस. सो लेट्स टेक दिस define a set function by let's the values are, we have only here 4 numbers. The first value must be 0, the value of the empty set, and the value of the singleton 3, doubleton 1, 2, they are same. Value of singleton 3 is same as the value of this doubleton set 1, 2. Both are equal to 1, and the value of the whole space X, which is equal to 1, 2, 3, its value is 2. So this mu, it's a measure. You can easily verify that. Let's define this function by this is a measure. This is a measure.
you can easily verify the properties of major. That's not difficult, क्योंकि यहाँ पर members ही कितने हैं, 4 total members है, that you can easily verify. It's a major. हम शो करेंगे ये जो सिंगलटन 1 है, जो कि एस का हर कोई मेंबर मेजरेबल है. इट्स अ मेजर. एस का सिम्बेरिंग का हर कोई मेंबर मेजरेबल होता है ना. दैट्स ऑलरेडी डन. तो सी भी मेजरेबल है, 3 भी मेजरेबल, 1 2 भी मेजरेबल और एक्स भी मेजरेबल. अब वहां पर बचा क्या, कौन से सेट्स बचे हैं जो आपको मेजरेबिलिटी के लिए चेक करने हैं. 1 is 2 3, सेकंड इज सिंगलटन 1, सिंगलटन 2. तो ये 2-3 सेट्स बचे जो आपको चेक करने हैं. तो यहाँ पर जो एल्ब्रेक्ट ने किया, इसने कहा कि ये जो सिंगलटन 1 है, दिस सेट्स नॉट मेजरेबल. आप सिंगलटन 2 भी चेक कर सकते हो, वो मेजरेबल है कि नहीं, वो भी आप चेक कीजिए. और सिंगलटन 3 आपको चेक करना ही नहीं है, वो एस का मेंबर है. इसके बाद आप 2 3 को चेक कर सकते हो, जो कि एस का मेंबर नहीं है. ओके, ये मैं इरेज करूँ इस पेज को. हाँ सर. We show that this set E, which singleton 1, is not measurable. So for this we take this subset. We take A equal to this set. क्योंकि अगर ये measurable होगा, then outer measure of A should be equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E complement. Not for every subset of S, but for the members of S only. जो आपने वो थ्योरम किया, आपको सिर्फ S के मेंबर्स पर चेक करने हैं. तो S का मेंबर मैं कौन सा लूंगा, आई विल चूज दिस मेंबर ऑफ S. S में तो आपके पास कितने सेट्स हैं, मतलब 2-4 सेट्स है, मैं ये लूंगा 1 2. Then you verify that for this choice, verify that mu star of A is not equal to mu star of A intersection E plus mu star of A intersection E complement. ये आपके लिए मतलब एक्सरसाइज है, ये आप चेक कीजिए. In fact, you will see that what's mu star of A. You can see this mu star of A. It's the infimum of certain set, and its value is equal to 1. But mu star of this set A intersection E plus mu star of A intersection E complement, its value is equal to, this value of the sum is equal to 2. This thing is 2. Both are 1 plus 1. Okay, so this side is 2 and this side is 1. They are not equal. So therefore E is not measurable. Therefore E is not measurable. तो ये आप वेरीफाई कीजिए ये चीज़ें. इसमें ये आउटर मेजर निकालिए. इट्स अ रफ वर्क, थोड़ा सा इसमें रफ आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो आप कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. तो जो मैं बता रहा था, जो एग्जांपल है, जो कि रियल लाइन पर जो एग्जांपल है जो विटाली ने की है, वो हम डिस्कस करेंगे. वो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली. दैट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी एग्जांपल के साथ ये यूनिट आपका हो गया, फर्स्ट यूनिट. तो अब मैं आज असाइनमेंट शीट बनाऊंगा इस यूनिट का, जो आप करोगे 5-10 दिन में. ओके, तो इस एग्जांपल को हम देख लेंगे. दिस इज गिवन बाय विटाली. So let's take this lambda star. Okay, outer measure generated by the Lebesgue measure. Let lambda star be the outer measure, on R generated by the Lebesgue measure lambda. Generated by the Lebesgue measure
लिबिक मेजर लैम्डा। लिबिक मेजर यू नो, यहाँ पर जो सेमिरिंग है, इट्स सेमिरिंग इज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स, और जो मेजर हम डिफाइन दैट्स जस्ट द लेंथ, ओके, जनरेटेड बाय दिस लिबिक मेजर। Okay, we take a set that let's take this set. Obviously this set is measurable, this set, every closed set is measurable, right? Now देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट करनी होती, एक तो एब्स्ट्रैक्ट अगर आप करोगे कंस्ट्रक्ट, उसमें आपको कोई नॉन ट्रिवियल चीज़ यूज़ नहीं करनी होगी, बट आप अगर कोई ऐसी चीज़ प्रूव करो, मतलब जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मतलब ये ट्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे रियल लाइन में मैं बताऊंगा, आप कोई सेट लीजिए ए, फिर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, मैं बताऊंगा इस सेट होल सेट का मेजर ये इस मेजर ऑफ दिस एंड मेजर ऑफ दिस ये इसके बराबर है, सम ऑफ दीज टू मेजर्स, मतलब रियल लाइन पर, वो भी एक रियल मेजर, बिग मेजर के लिए अगर आपको ऐसा बताना होगा, तो ओबियसली इसमें आपको कोई नॉन ट्रिवियल चीज़ यूज़ करनी होगी, और इनफैक्ट मतलब वो एक एक्शन होगा जिसका प्रूफ नहीं है, जो आपको मानना है कि ये ट्रू है ना, तो वो हम यहाँ पर एक्चुअली यूज़ करते हैं। जैसे आपको बेसिस, जैसे कहते हैं कि हर किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये बताना, और इसको मानना भी बहुत मुश्किल है, बट हाउ डू वी प्रूव दैट एवरी वेक्टर स्पेस इज अ बेसिस? व्हाट वी आर यूजिंग देयर एक्सियम ऑफ चॉइस एक्चुअली। फाइनाइट केस दैट्स ट्रिवियल, फाइनाइट केस में एक्सियम ऑफ चॉइस की जरूरत नहीं है, बट एक्सियम ऑफ चॉइस जो है दैट्स ट्रिवियल, अगर आप मतलब उसके इक्विवेलेंट फॉर्मूल्स है, कुछ फॉर्मूल उसकी ट्रिवियल है, कुछ फॉर्मूल उसकी, जैसे मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा इसकी, ये है, मैं आई विल टेक अ कलेक्शन ऑफ सेट्स ई अल्फा, अल्फा इज इन द इंडेक्स सेट, ओके, then I choose a set by the axiom of choice. How do I choose the set? I select one find from each alpha. हर किसी सेट से आप एक एक find choose करते हो, and you are making this collection E is a collection such that X belongs to E alpha. मतलब हर किसी E alpha से आप एक एक सेट लेते हो, और ये सेट है, this is a set. लग रहा है कि ट्रिवियल है, ये तो सेट हो गए, obviously it's a set, and this is actually axiom of choice. अब देखिए यहाँ से कितना ट्रिवियल लग रहा है कि ये एक्सियम ऑफ चॉइस कितना सिंपल है, मगर इसकी जो और सारी इक्विवेलेंट फार्मूल्स है ना, कुछ फार्मूला हमें बहुत नॉन ट्रिवियल लग रही है। जैसे आपके पास है वो ज़ोनस लेमा, which looks non trivial, but that Zon's lemma is equivalent to this actually, this axiom of choice. अगर आप इसको मान रहे हो, Zon's lemma ट्रू है, अगर आप Zon's lemma को मानोगे वो ट्रू है, then you will get this axiom of choice. तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लिविंग मेजरेबल सेट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll make the use of Zon's lemma, we'll make the use of axiom of choice. We'll assume that such a set always exists. Such a set always, if we have a given collection of sets, we can always pick one point from one element from each collection, each set, and we'll get a new set. So that we are going to use here axiom of choice. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we define a relation, define a relation which we denote by this notation. On A, what's A is the closed interval 0, 1 by X is related to Y. X is related to Y if and only if X minus Y is a rational number. Is a rational number. X minus Y is a rational number.
So this relation is reflexive because everything is related to with itself. X is related to x, as x minus x is 0, which is a rational number. And it's obviously symmetric. If x minus y is rational, then y minus x is also rational. It's also transitive because whenever x minus y is rational, y minus z is rational, then their sum is also rational, which is x minus z. So this relation is an equivalence relation. Then this relation is an equivalence. So if this relation is an equivalence, you can take the equivalence classes. You can define the equivalence classes. So thus this relation partitions the interval 0, 1. Partitions the interval 0, 1 into equivalence classes. Means that interval 0, 1 is the union of equivalence classes. Okay, जो इस relation से आपके पास आ जाएगी. That you know. So what we do now, हम जितने भी equivalence classes होंगे, हम हर एक equivalence class से एक set choose करेंगे, एक element लेंगे हम हर किसी equivalence class से, और एक नया set बनाएगी E, which is consisting of those elements. Okay, so let's define this set. Let E be a subset. E be a subset of 0, 1, subset of 0, 1, which intersecting with each equivalence class, with each equivalence class precisely at one point. Precisely at one point. ये वही है जो मैंने एक्चुअली आपसे कहा है. देखिए आपके पास सपोज ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, ये दूसरा इक्विवेलेंस क्लास है, इसी तरह से आपके पास बहुत सारे इक्विवेलेंस क्लास है. हर किसी क्लास से आप एक एक पॉइंट ले रहे हो और आप ये सेट बना रहे हो एक्स वाई एंड सो ऑन. मतलब इस इक्विवेलेंस क्लास से सपोज आपने एक्स ले, यहाँ से वाई लिया है. अब ये जो सेट है, अगर इसका इंटरसेक्शन में देखूंगा किसी भी इक्विवेलेंस क्लास के साथ, ये एक ही पॉइंट पर इंटरेस्ट करेगा. सपोज अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लूंगा तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, एक पॉइंट पर, क्योंकि एक ही है ना एक्चुअली. हर किसी क्लास से आप एक एक पॉइंट ले रहे हो. इसी तरह से इसके साथ भी एक पॉइंट पर इंटरेस्ट करेगा. सेकंड इक्विवेलेंस क्लास जो आपके पास वाई है, इस तरह से आपके पास जितने भी इक्विवेलेंस क्लास है, हर किसी इक्विवेलेंस क्लास के साथ ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. क्योंकि एक्चुअली आप ये सेट किन पॉइंट्स का है, ये सेट इन्हीं पॉइंट्स का, क्योंकि हर एक इक्विवेलेंस क्लास से हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं. एंड दिस सेट एग्जिस्ट्स बाय एक्शन ऑफ चॉइस. सच ए सेट एग्जिस्ट्स, such a set exists by action of choice. By और हमारा मकसद यह है कि this is not Lebesgue measurable. We show that E is not Lebesgue measurable. We show that this E, which is subset of the interval 0, 1, is not Lebesgue measurable. Is not. तो आप अज्यूम करोगे कि ये Lebesgue measurable है. मुझे लग रहा है आज हम इसमें इतना ही करेंगे, हाँ, क्योंकि मैं इसमें जल्दी नहीं करना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल में. तो ओके, लेट्स एंड दिस लेक्चर. सर सीआई के रिलेटेड मतलब हमें वो मल्टीपल चॉइस टाइप होगा वो. हाँ, मल्टीपल चॉइस होगी, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव्स होगी आपके टोटल. ठीक है, 5. और जो मैं लिंक शेयर करूँगा, जूम लिंक, मैं उसी में पेपर शेयर करूँगा. आई विल नॉट डू व्हाट्सएप. तो आपको 5 मिनट मिल जाएगी इस पेपर को लिखने के लिए. अब 10 मिनट वो पेपर पर डिपेंड करें, पेपर कितना बड़ा होगा. तो 10 मिनट के बाद वो पेपर वहाँ नहीं होगा. ओके, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना है. ओके, आपको अपना मोबाइल थोड़ा दूर रखना ताकि
वो सारी चीज़ें वहाँ नज़र आ जाए जो आपके इर्द गिर्द है। देन यू विल डू है। तो आपको इसमें फिर 30 मिनट्स मिल जाएगी, मतलब टोटल जूम मीटिंग 40 मिनट्स की है। पहले 10 मिनट में आप ज्वाइन और बाकी चीज़ें करोगे, वो पेपर लिखोगे। फिर जो नेक्स्ट 30 मिनट्स है उसमें आप वो पेपर करोगे, और फिर आपको और 5 मिनट मिल जाएंगे पेपर सबमिट करने के, 5 मिनट्स। ओके, जी सर। सर हमें यही बेसिक ही पढ़ना है ना, मतलब मल्टीपल चॉइस के लिए? मल्टीपल चॉइस के लिए पढ़ना है, यही यूनिट आपको करना है फॉर मल्टीपल चॉइस। ओके।